Namaskar, Sat Sri Akal, Adab, and good evening to everyone at the Motherhood Club. We are meeting Dr. Indu Bansal after a break. After all, even doctors are entitled for a break to enjoy and at the same time take a breather from something that they keep doing on an ongoing basis. We've been talking about cancer as a disease, but more from a point of view that we can catch it at the right time. And if we do so, it is curable. Yes, there are fatalities, there are situations where things go beyond your control. But then we also need to understand as to why does that happen. Our body is a very complex machine. What goes inside, most often than not, we tend to ignore. एक मशीन की तो हम ओवरऑलिंग करते हैं, उसको ऑयलिंग भी करते हैं, ग्रीजिंग भी करते हैं, लेकिन जब हमारी बॉडी की बात आती है, उसको हम आई थिंक काफ़ी हद तक इग्नोर करते हैं। क्या हम कंज़्यूम करते हैं, क्या हम खाते हैं, किस तरीके की लाइफ़स्टाइल हम जीते हैं, इसकी वजह से हम अपनी बॉडी को बहुत अब्यूज़ करते हैं, मेंटली, इमोशनली और फिज़िकली। तो कैंसर की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए, आज हम बात करने वाले हैं ब्लैडर कैंसर के बारे में। May is the month dedicated to bladder cancer awareness, and today this session is live on Facebook, YouTube, and LinkedIn. Please feel free to share this conversation if it impacts the life of even one person where they are able to capture the symptoms at the right time. We will feel, and I'm sure so would Dr. Bansal, that we have achieved something and we are able to save a life. So warm welcome, Dr. Bansal. बहुत टाइम बाद आप आज आई हैं मदरहुड क्लब पे. आई होप यू आर डूइंग वेल. Yes, good evening, everyone. And it's always a very pleasure to connect again with the motherhood family. So it's not just a club for me, I think it's a family. And there were a few commitments because of which I was not there, but I'm always there for motherhood club. So thanks, Ekta, and you all people, you are doing amazing job. And thanks for making me a part of it. And as Ekta said, I think it's important that if even if we are able to save the life of one person, I think the session serves its purpose. So we would like more of you to please share it with your friends so that it makes an impact. Because if people who have not been able to connect, अगर आप उन लोगों के साथ भी share कर पाएं तो उसका फायदा हमें थोड़ा ज़्यादा होगा. Yeah. Absolutely, बिल्कुल सही कहा आपने. And I think the feedback that we have received from a lot of people, not just at Motherhood Club, but even outside of Motherhood Club, is that these kind of sessions should happen, such awareness should be created. It is extremely important because ये एक ऐसी disease है which is impacting the lives of not just the patient but of the entire family, not just in India but world over. And every conscious effort has to be made towards talking about it so that we can nip it in the bud and we can actually understand how can we protect ourselves from this deadly disease. तो डॉक्टर बंसल, आज आप हमें ब्लैडर कैंसर के बारे में बताइए. So basically, Ekta, I would want to make two things clear कि ब्लैडर वर्ड जब हम कई बार यूज करते हैं तो ब्लैडर बेसिकली पेशाब की थैली के ट्यूमर्स की हम लोग बात कर रहे हैं. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट गॉल ब्लैडर कैंसर्स टुडे, जो कि पित्त की थैली होती है. सो हम ब्लैडर कैंसर यानी कि द बैग विच कलेक्ट्स यूरिन, पेशाब की थैली, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे. सो ब्लैडर कैंसर अगर आप एक्चुअली में मुझसे पूछोगे तो आई वुड से इट्स नॉट अ वेरी वेरी कॉमन ट्यूमर. इट्स मतलब इट्स जैसे जो हेड एंड नेक कैंसर्स होते हैं, ब्रेस्ट कैंसर है, लंग कैंसर है, ये उतना कॉमन ट्यूमर नहीं है, बट जिसको होता है उसको डेफिनेटली परेशान करता है. लेकिन एक चीज जो ब्लैडर कैंसर के बारे में अच्छी है वो ये है कि जैसे इसके सिम्टम्स थोड़ा जल्दी पता लग जाते हैं, तो उसकी वजह से हमारे पास काफी सारे पेशेंट्स स्टेज 0 में भी आ जाते हैं. सो अगर हम अपने सिम्टम्स को पहचानते हैं और अगर हम उनको इग्नोर नहीं करते हैं तो ब्लैडर कैंसर को हम अर्ली स्टेज में भी पकड़ सकते हैं एंड देन इट बिकम्स क्योरेटिव. और हमारे पास बहुत सारे ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं. ट्रीटमेंट की हम बातें बाद में करेंगे, बट
uh, what is important is to understand the symptoms of bladder cancer. So जैसे मुझे एकता कहेंगी, मैं I'll talk about them. Ji, bilkul. And yes, that is what even I read, that it's one of the kind of cancer that can be caught at a very early stage. एंड Yeah. थैंक यू फॉर क्लैरिफाइंग कि यहाँ पे हम गॉल ब्लैडर की बात नहीं कर रहे हैं, हम एक्चुअली ब्लैडर बैग की बात कर रहे हैं, विच वेयर द यूरिन गेट्स कलेक्टेड. सो डॉक्टर बंसल, बिफोर वी गो ऑन टू द सिम्टम्स ऑफ इट, what I want to understand is that, is this kind of cancer more common in men or in women? So honestly, what the data says, as per data worldwide, it is more common in men. उसका reason शायद ये है कि because bladder cancer is associated with smoking, and more men smoke as compared to women. So लोगों को कई बार ये लगता है कि स्मोकिंग से सिर्फ हेड एंड नेक कैंसर्स होते हैं या लंग कैंसर होते हैं, और अगर हम उनको बताएं कि पेशाब की थैली का कैंसर भी स्मोकिंग से रिलेटेड है, तो लोग इस बात में विश्वास नहीं रखते. तो इसका बेसिक रीजन क्या है? देखिए, मैं आपको लगता होगा कि हर बार मैं स्मोकिंग के अगेंस्ट बहुत बात करती हूँ. उसका रीजन ये है कि जो स्मोकिंग का धुआं है वो जहां जहां पे जाता है सब जगह पे राख, हर चीज को राख कर देता है. तो जो भी हम स्मोक करते हैं तो उसके टॉक्सिन, जो टॉक्सिक प्रोडक्ट्स हैं, वो कहीं से तो निकलेंगे. सो वो कहाँ से निकलेंगे? किडनी से निकलेंगे. किडनी से जो पाइप किडनी से ब्लैडर को कनेक्ट करती है, जिसको यूरेटर्स बोलते हैं, वहां पे, या पेशाब की थैली में, क्योंकि यूरिन हमारा ज्यादा देर वहां इकट्ठा रहता है. तो इस, और इनफैक्ट जो मेल ऑर्गन होता है पिनाइल एरिया, वो सारे कैंसर स्मोकिंग से रिलेटेड होते हैं. सो मेल्स में स्मोकिंग इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर. और इनफैक्ट रूरल एरियाज में काफी सारे फीमेल्स हैं जो कि हुक्का पीती हैं या बीड़ी भी पीती हैं या नस्वार खैनी खाती हैं. और women in urban areas who smoke and who take alcohol, they are at increased risk of bladder cancer. दूसरा इसका एक कारण होता है, देयर आर, तो इसके दो तीन तरह की वेराइटीज होती हैं. एक वैरायटी होती है जिसको हम ट्रांजिशनल सेल कार्सिनोमा बोलते हैं. मतलब कि जो हमारी ब्लैडर की लाइनिंग है, पेशाब की थैली की लाइनिंग है, वहां से अगर ट्यूमर शुरू होता है तो उसको ट्रांजिशनल सेल कार्सिनोमा बोलते हैं. इसी तरह एक वैरायटी होती है जो थोड़ी रेयर होती है, विच इज स्क्वामस सेल कार्सिनोमा. वो ज्यादातर जिन लोगों में कोई पैरासिटिक इन्फेक्शन होता है, इन्फेक्शन की वजह से होती है, या क्रॉनिक इरिटेशन की वजह से होती है. मान लीजिए कोई स्टोन है जो वहाँ पे बहुत टाइम तक पड़ा हुआ है, उनकी वजह से होती है. पर रेयरली एक और वैरायटी होती है जिसको एडिनोकार्सिनोमा बोलते हैं. वो जो ब्लैडर के अंदर ग्लैंड्स होते हैं, उसका ट्यूमर होता है. इसके अलावा जो आपने पूछा कि वाई इज इट मोर कॉमन इन मेन, उसका रीजन ये है कि जो लोग पेंट इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, या जो जहाँ पे हार्डवेयर का काम ज्यादा होता है, या जो उनको बेंजीन बेंजीन वगैरह टाइप के जो फैक्ट्रीज में काम करते हैं, उन पेंट हार्डवेयर इंडस्ट्रीज में जो लोग काम करते हैं, उनको ब्लैडर कैंसर का खतरा ज्यादा होता है. सो मोर मेन वर्क इन दीज फैक्ट्रीज एज compared to women. So that's why bladder cancer more on men, but we do see it in women also. It's not that we don't see it in women. Right. Yeah. So let's first talk about the symptoms, to understand ki what are the kind of symptoms. And again, as we have understood from our previous conversations, that most of the symptoms of any टाइप ऑफ कैंसर और एनी बॉडी पार्ट का जो कैंसर होता है, वो बहुत ऐसे सिम्टम्स होते हैं जो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं कि इज इट एक्चुअली कैंसर और इज इट समथिंग एल्स. तो ब्लैडर कैंसर के सिम्टम्स क्या होते हैं? तो देखिए, बड़े इसके सिम्टम समझना बहुत आसान है. ठीक है. ब्लैडर में, अब हमारे ब्लैडर का जो यूरिन का जो बैग है, उसका बेसिक काम क्या है? टू स्टोर यूरिन. ठीक है. सो अगर कोई भी ऐसी गांठ होगी जो कि पेशाब की थैली में होगी, तो वो ब्लैडर कैपेसिटी को कम कर देगी. मतलब जितना यूरिन हम होल्ड कर सकते हैं, वो कैपेसिटी कम हो जाएगी. दूसरा, वो जो यूरिन जो ब्लैडर से
ट्यूब्स होती हैं, उसके अंदर यूरेटर्स ओपन करते हैं जो किडनी से यूरिनरी ब्लैडर को कनेक्ट करते हैं, और बाहर हमारा यूरिथ्रा होता है जो कि यूरिन को लेके जाता है। सो अगर यहाँ पे कोई भी ट्यूमर होगा तो ट्यूमर से ब्लीडिंग होगी, ब्लीडिंग की वजह से पेशेंट को सिम्टम्स क्या आएंगे कि यूरिन में ब्लड आता है, एक बड़ा कॉमन सिम्टम होता है, और यूरिन में ब्लड कोई भी पेशेंट इग्नोर नहीं करता। तो मैंने कहा कि ये कैंसर थोड़ा टाइमली डायग्नोज हो जाता है, क्योंकि अगर किसी की यूरिन में ब्लड आएगा तो वो डॉक्टर को दिखाई देगा। ठीक है। सो एक तो मेन कॉमन सिम्टम होता है कि भाई यूरिन में ब्लड आ रहा है। अब अगर किसी को फ्रैंक ब्लड आ रहा है, मतलब साफ साफ यूरिन में ब्लड आ रहा है, तो वो आपको पता चल जाएगा। बट अगर कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि फ्रैंक ब्लड ना आए और थोड़ा बहुत वैसे ही यूरिन में थोड़ा थोड़ा लीक हो रहा हो, जो कि फ्रैंकली यूरिन में पता ना लगे, तो उसमें क्या होगा कि पेशेंट का हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा, दिल स्टार्ट फीलिंग वीक, थकान उनको लगने लगेगी। या अगर वो यूरेटर्स के पास बैठा है तो यूरिन ऑब्स्ट्रक्शन के सिम्टम्स होंगे, मतलब यूरिन का फ्लो अच्छा नहीं होगा, यूरिन इनिशिएट करने में प्रॉब्लम होगी, यूरिन की धार अच्छी नहीं बनेगी, यूरिन शुरू करने से पहले या यूरिन करने के बाद जलन हो सकती है, ब्लड यूरिन करने के दौरान आ सकता है, बाद में आ सकता है, यूरिन की स्ट्रीम पतली हो सकती है। तो इस तरह के सिम्टम्स होते हैं। अगर ये यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन के साथ भी पेशेंट्स आते हैं कि जो वहां से क्लॉट हुआ, जो खून का धक्का जो है वो उस रास्ते को ब्लॉक कर दे जहां से यूरिन को निकलना है, तो उस केस में यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन होगा, तो पेशेंट को यूरिन पास करने में बहुत दिक्कत होगी, वो बार बार बाथरूम के चक्कर काटते रहेंगे और उनको यूरिन का फ्लो अच्छा नहीं होगा। अगर ये ट्यूमर फैल जाएगा, अगर मान लीजिए बोन्स में चला गया, तो बोनी पेन्स हो सकते हैं, कमर में दर्द हो सकता है, थकान हो सकती है, लॉस ऑफ एपिटाइट हो सकता है, मतलब भूख कम लगेगी। अ, ये कॉमन सिम्टम्स होते हैं। तो अ, अगर फ्रैंक ब्लड आ रहा है तब तो आप दिखाई दोगे। तो हम लोग कई बार पेशेंट्स को बोलते हैं कि 40 ईयर्स के बाद आप साल में एक बार यूरिन टेस्ट कराएं। वो उसका बेसिक पर्पज यही है कि यूरिन टेस्ट में अगर आपका यूरिन में ब्लड आ रहा है, तो कभी कभी यूरिन में ब्लड यूटीआई की वजह से भी हो सकता है, मतलब यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है। तो ये एक सिंपल सी चीज है जो कि अल्ट्रासाउंड से भी डिटेक्ट हो जाती है। अभी मेरे पास अभी 15 मिनट्स पहले अभी मेरे सामने, मतलब क्लिनिक में एडमिटेड है पेशेंट, उनका यूरिनरी ब्लैडर में ग्रोथ साइज बहुत छोटा आया है, 1.5 सेंटीमीटर का ग्रोथ है, लेकिन वो क्लॉट जो था उसने रास्ता बंद कर दिया। तो उनको हिमेचूरिया हुआ, हिमेचूरिया का मतलब ब्लड इन यूरिन, एक एपिसोड हुआ और वो इमीडिएटली मेरे पास आ गए। तो वी कुड डिटेक्ट द ट्यूमर व्हिच इज जस्ट 1.5 सेंटीमीटर इन साइज। नहीं तो कई बार हमारे पास बहुत एडवांस केसेस में पेशेंट्स आते हैं। सो इन सिम्टम्स को कीप अ वॉच एंड डोंट इग्नोर। So if urine gets obstructed and or if there is difficulty in passing urine, which would also lead to some kind of bloating in the body because water retention hoga, will that also be a symptom that one should be conscious of? सो वो बाद में आएगा, दैट विल नॉट बी अ अर्ली सिम्टम। वो तो आप अगर आप बिल्कुल ही इग्नोर कर दोगे डिसीज को, दैट विल बी अ सिम्टम देन। सो एज आई सेड कि यूरिनरी ब्लैडर कैंसर इसलिए जल्दी डायग्नोज हो जाती है क्योंकि हीमेचूरिया इज वन ऑफ द सिम्टम्स व्हिच पीपल यूजुअली डोंट इग्नोर। तो यूरिनरी सिम्टम्स आ जाते हैं, यूरिन की धार में प्रॉब्लम हो रही है, यूरिन में ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है। तो बट कई बार पेशेंट तब भी उन सिम्टम्स को इग्नोर करते हैं। तो अगर आपका यूरिन नीचे उतरेगा ही नहीं, वो यूरिन बैग में कलेक्ट होता रहेगा, तो वो वापस किडनीज में जाएगा। तो किडनीज में इकट्ठा होगा तो उसको हम हाइड्रोनेफ्रोसिस बोलते हैं उस कंडीशन को। तो वो आपकी किडनी को डैमेज करने लग जाएगा और आपका किडनी फंक्शन की रिपोर्ट गड़बड़ होने लगेगी, यूरिया क्रिएटिनिन बढ़ जाएगा बॉडी में। तो यूरिनरी इन्फेक्शन के सिम्टम्स आ जाएंगे। तो फीवर आ जाएगा पेशेंट को, बिकॉज यूरिनरी इन्फेक्शन होगा तो दे कैन कम विद यूटीआई भी, जैसे होता है सेप्सिस, तो ठंड लग के बुखार चढ़ेगा, चिल्स होंगे, चिल्स विद राइगर्स होंगे। सो दीज आर इनडायरेक्ट सिम्टम्स, but main is hematuria or difficulty in passing urine. These are the two main symptoms. Right. So at this juncture, let me thank everybody who have joined us and who are watching this, which simply shows that you are concerned about your own health and your loved ones. तो बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से आभार आप सभी का कि हेल्थ रिलेटेड कॉन्वर्सेशंस के लिए भी आप लोग सब आए हैं। एक क्वेश्चन आया है डॉक्टर बंसल मुकेश भटागर जी से, that in advanced age, especially in men,
it is difficult to judge urine capacity in bladder. Moreover, stone problem भी हो सकती है. So when would someone know that it is directing towards a different direction than just a stone in the kidney or anything else? Could be a prostate problem. Okay, so that's a very good question. So, as I said, ki if a patient comes with any such symptoms, we and if they are smokers also, सो उनके सिम्टम्स के बेसिस पे हम लोग एक तो यूरिन टेस्ट कराते हैं, लाइक यूरिन कल्चर, यूरिन रूटीन टेस्ट एंड यूरिन कल्चर. सो यूरिन रूटीन में अगर पस्टल्स आ रहे हैं, सो इट मीन्स इट कुड बी बिकॉज ऑफ यूरिन इन्फेक्शन, और ब्लड आ रहा है तो ऑफकोर्स यू विल सी कि भाई क्या हो रहा है. एंड एट द सेम टाइम अगर किडनी में स्टोन है, अगर यूरेटर में स्टोन है, यूरिनरी ब्लैडर में स्टोन है, या यूरिन में भी ब्लैडर में कोई ग्रोथ है, या किडनी में कोई ट्यूमर है, they are easily picked up on ultrasound. So ultrasound is simple sa test hai which is available everywhere, which is not a very costly test, and it is an effective test to detect these problems. So अगर हमें कहीं पे भी मान लीजिए किडनी में, यूरिन यूरेटर्स में, ब्लैडर में कहीं पे कोई स्टोन दिख रहा है और कहीं पे कोई ग्रोथ नहीं दिख रही, तो ऑफकोर्स दिस इज बिकॉज ऑफ स्टोन प्रॉब्लम. ठीक है, बट अगर कभी कभी कोई ब्लैडर के टीबी भी हो सकती है, देयर कैन बी अ टीबी, ट्यूबरकुलोसिस ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर आल्सो. बट अगर अल्ट्रासाउंड में ग्रोथ दिख गई तो हमें पता चल जाएगा कि भाई हाँ यहाँ पे प्रॉब्लम है. और अल्ट्रासाउंड में प्रोस्टेट भी दिख जाता है कि प्रोस्टेट का साइज कितना है, प्रोस्टेट का वॉल्यूम कितना है, तो पोस्ट वॉइड रेजिडुअल यूरिन कितना है, मतलब यूरिन पास करने के बाद आपकी थैली में कितना बचा रह गया, वो सारी इंफॉर्मेशन हमको एक सिंपल अल्ट्रासाउंड से मिल जाती है. तो इसलिए हम सबसे पहले कोई टेस्ट कराते हैं, तो दैट इज अ यूरिन रूटीन टेस्ट एंड अ कल्चर एंड अ अल्ट्रासाउंड. अगर अल्ट्रासाउंड में हमको कुछ एबनॉर्मैलिटी दिखती है, देन वी गो फॉर फर्दर टेस्ट. और Right. प्रोस्टेट का एनलार्जमेंट जो है वो हम पर रेक्टल एग्जामिनेशन से, मतलब जो लैट्रिन का पैसेज होते हैं वहां पे फिंगर डाल के हम लोग पता लगा सकते हैं कि प्रोस्टेट बढ़ा हुआ है कि नहीं बढ़ा हुआ है. सो दैट गिव्स अस इंफॉर्मेशन. So Right. ultrasound abdomen is a very simple test to diagnose, to get an early idea about urinary bladder tumors. So, how frequently would you suggest that one should get a full abdomen ultrasound done so that क्योंकि एब्डोमेन में तो बहुत सारे बॉडी पार्ट्स आ जाते हैं, इंपॉर्टेंट बॉडी पार्ट्स आते हैं हमारे, तो हाउ फ्रीक्वेंटली शुड वी गेट एन अल्ट्रासाउंड डन? So I think this is a very, very important question. We address it every time, but I think it still needs address every time. So I always tell कि mostly जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, उम्र बढ़ने के साथ हमारा कैंसर का खतरा बढ़ता जाता है. लाइक ब्रेस्ट कैंसर इफ वी टॉक अबाउट, सो यंग पेशेंट्स में कम होता है, बट अगर आपकी 50-60 की एज है या 70-80 की एज है तो ब्रेस्ट कैंसर का खतरा बढ़ जाता है. इसी तरह यूरिनरी ब्लैडर कैंसर ऑल्सो इंसिडेंस गोज अप विद एज. ओके, सो आइडियली अगर हम 40 ईयर्स के बाद, 40 साल के बाद, साल में एक बार भी अगर हम अपना सिंपल टेस्ट, बिल्कुल बेसिक टेस्ट, एक्सरे टेस्ट और अल्ट्रासाउंड भी करा लें, इट गिव्स अस अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन. सो एक्सरे टेस्ट में आपको टीबी पता चल जाती है, आपको कोई गांठ पता चल जाती है, कोई ब्रोंकाइटिस तो नहीं है, कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, कोई निमोनिया तो नहीं है, ये सारी चीजें, कोई हार्ट का एनलार्जमेंट तो नहीं है, कोई लिम्फ नोड एनलार्जमेंट तो नहीं है, कोई सिंपल एक्सरे ऑल्सो गिव्स अस अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन. इसी तरह जैसे आपने कहा कि अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन जो है ये तो बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, तो आप एक चीज सोचो कि नॉन इन्वेजिव टेस्ट, पेट पे हाथ लगा के 5 मिनट में अगर हमें अपनी बॉडी के अंदर क्या हो रहा है वो पता चल जाए एट अ सिंपल $1,000, सो व्हाट एल्स डू वी नीड. सो एक अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन में हमको गॉल ब्लैडर स्टोन्स पता चल जाएंगे, हमको लिवर में कोई फैटी लिवर तो नहीं है, लिवर में कोई सिरोसिस तो नहीं है, लिवर में कोई गांठ तो नहीं है, स्टमक में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, यूटरस में फीमेल्स में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ओवरीज में कोई दिक्कत तो नहीं है, रेक्टम में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, किडनीज में, यूरिनरी ब्लैडर में, प्रोस्टेट में, तो कम से कम हमें 15 अपेंडिक्स की प्रॉब्लम, ये सारी चीजें हमें अल्ट्रासाउंड से पता चल जाती है. तो 40 ईयर्स के बाद साल में अगर हम एक बार भी प्रॉपर पूरे पेट का अल्ट्रासाउंड करा लें,
So we can get a lot of information. और 50 इयर्स के बाद अगर हम यूरिन रूटीन कराना शुरू कर दें तो यूरिन रूटीन में हमें एटलीस्ट पता चल जाएगा कि ब्लड लॉस तो नहीं हो रहा है, कोई प्रोटीन लॉस तो नहीं हो रहा है, कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। और हमें इसी तरह एक और टेस्ट होता है जिसको बोलते हैं यूरिन साइटोलॉजी फॉर मेलिग्नेंट सेल। मतलब यूरिन का टेस्ट भेजा जाता है कि कोई भी ट्यूमर है, ट्यूमर की कुछ सेल्स डेड होंगे एंड दे विल बी फ्लश्ड आउट ऑफ द सिस्टम। तो उसमें हमको कैंसर सेल्स दिख जाते हैं यूरिन साइटोलॉजी फॉर मेलिग्नेंट सेल्स में। तो अगर किडनी में, यूरेटर्स में, ब्लैडर में कहीं पे भी कुछ अबनॉर्मैलिटी हुई होगी तो वो साइटोलॉजी से डिटेक्ट हो जाता है। सो खास तौर से अगर कोई स्मोक करता है या किसी की फैमिली हिस्ट्री है ऑफ रीनल ट्यूमर, ऑफ यूरिनरी ब्लैडर ट्यूमर या अल्कोहल वो लोग लेते हैं तो उनको तो स्पेसिफिकली 40 के बाद साल में कम से कम एक बार अल्ट्रासाउंड पूरे एब्डोमेन का कराना ही करना चाहिए। Absolutely. So, a question that Monica asked, that are you saying that basic ultrasound of the abdomen should be done annually? Yes, Monica, that is what she's trying to say. Urine routine, urine culture, urine cytology, ultrasound of the full abdomen. अगर आप regular basis पे कराएं after the age of 40, and for men specifically, urine test after the age of 50, then perhaps, and doing a full abdomen ultrasound can perhaps help us be a little more preventive about some of the deadly diseases like bladder cancer, prostate cancer, liver cirrhosis, and a lot of them. I don't want to take all those names because I'm sure that scares everybody. But I think it is important that we understand. There was a question: what is the name of the test? Mukeshi, as she mentioned, we're talking about the abdomen ultrasound. We're talking about a routine urine culture and routine test and cytology. And I think it is important कि आप अपनी body के symptoms को समझिए. Don't ignore whatever your body is trying to tell you, any kind of discomfort that is there. Please, there is no harm in doing a health checkup every year after the age of 40, right, Dr. Bansal? After 40, we should be more conscious. सो एक चीज जो मैं यहाँ पे करेक्शन चाहूंगी वो ये है कि यूरिन कल्चर इज ओनली इफ यू हैव एनी, if the urine routine shows any puzzle, urine culture you will not otherwise do because it you'll just spend your money. तो अगर रूटीन में कोई इन्फेक्शन होगा तो ही हम कल्चर के लिए जाएंगे, ठीक है। Ji. सो देयर आर 8 specific tests for cancer. It's not that every test should be started after 40 years of age, बट हम यहाँ पे ब्लैडर कैंसर की बात कर रहे हैं तो 50 इयर्स के बाद हमें साल में एक बार तो अल्ट्रासाउंड कराना ही कराना चाहिए। 40 के बाद प्रेफरेबली आप शुरू कर दें तो बहुत ही अच्छा है, 2-3 साल में एटलीस्ट आप एक बार कर लें बिकॉज हमारे पास बहुत सारे यंग पेशेंट्स भी आते हैं। आई सॉ अ यंग पेशेंट yesterday, hardly 38 years of age. He has a 10 centimeter tumor sitting in the kidney. अब आप ये बताओ 10 सेंटीमीटर का ट्यूमर एक दिन में तो नहीं बनेगा ना, और किडनी है तो दूसरी किडनी कंपनसेट कर लेती है तो सिम्टम्स नहीं आते हैं। इसी तरह ओवरीज हैं, ओवरीज की जो गांठें होती हैं वो हमारे पास कई बार 10-10, 15-15 सेंटीमीटर की गांठें लेके लोग लेके आते हैं। सो अगर आप रूटीन टेस्ट करा रहे हो तो जो चीज 10 सेंटीमीटर पे या 15 सेंटीमीटर पे डिटेक्ट हो रही है वो 1.5-2 सेंटीमीटर पे हो सकती है when the disease would be curable. So Correct. you will need less treatment, less investigation. Single modality treatment would be good enough, and you'll save a lot of money. And at the same time, the cost of treatment and chances of survival will go up. एब्सोल्युटली। सो ये तो हमने अपने मेल इसके बारे में बताया जो सिम्टम्स होते हैं, बट for ladies, especially when they cross the age of their menstrual period and they are in the phase of menopause, many a times, there is still some kind of spotting or irregular periods that are there. Sometimes people may confuse with that when there is blood in the urine. So, how does one differentiate again, specifically when we talk about women? Okay, so that's a very, very nice and a very intelligent question. So actually में ये कहना बड़ा मुश्किल है. I mean for the person to decide कि from where the blood is coming, because males have a different organ specifically made for urination, females का पता नहीं चल पाता है. तो
ऐसे सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं कि इफ एनी फीमेल कम्स टू अस वी टेक अ डिटेल्ड हिस्ट्री. इज इट menstrual cycle related irregularity or is it a urinary related abnormality? Okay. सो अगर यूरिन में इन्फेक्शन की वजह से होगी तो यूरिन पास करने में दिक्कत होगी, यूरिन के फ्लो में प्रॉब्लम होगी. और जो मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है वो तो वैसे भी हो जाता है. आई मीन इट हैज even if you are not passing urine, you can still pass your menstrual fluid. Okay. Right. So ऐसे situations में हम लोग पेशेंट का पर वेजाइनल एग्जामिनेशन करके देखते हैं कि इज देयर एनीथिंग, कोई सर्विक्स के ऊपर कोई ग्रोथ तो नहीं है, कोई ओवरीज में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है. एंड एज आई सेड अल्ट्रासाउंड इज अ वेरी सिंपल modality. So ultrasound even in women would show whether the tumor is in the urinary bladder, kidneys, or is sitting in the uterus. बट यूरिन के कोई सिम्टम्स होंगे तो अगर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग का इश्यू होगा तो पेशेंट को यूरिन पास करने में दिक्कत नहीं होगी, यूरिन में बर्निंग नहीं होगी, दे विल हैव इरेगुलर पीरियड. ओके. बट यस, समटाइम्स वी कम अक्रॉस फीमेल्स जो ये नहीं बता पाती हैं कि उनको यूरिन में ब्लड आ रहा है कि इट्स अ मेंस्ट्रुअल पीरियड. सो वो हमें डिटेल हिस्ट्री लेके और उनका क्लिनिकल एग्जामिनेशन देख के देखना पड़ता है. Right. So there is a question that Monica is asking, though it's not really related to the topic, but आप आती हैं तो सबके questions mind activate हो जाता है, and they want to ask everything. So she's asking if there are multiple fibroids in uterus, can that be cancerous? Okay. So fibroid is not a cancer. Let me make it very, very clear. But we should be sure that it's a fibroid. Okay. So fibroid does not mean a cancer. Fibroid is a benign disease. Benign मतलब it's a non-cancerous problem. बट क्या होता है कि जब हम अल्ट्रासाउंड कराते हैं किसी पेशेंट का, अल्ट्रासाउंड कैन वेरी ब्यूटिफुली टेल अबाउट फाइब्रॉइड और an endometrial cancer. ओके. तो फाइब्रॉइड जो है वो एज रिलेटेड बनते हैं कई बार. मतलब जैसे आपका मेनोपॉज आने वाला होता है तो कभी कभी उस टाइम पे फाइब्रॉइड्स बनते हैं, पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं. सो फाइब्रॉइड की लोकेशन पे भी डिपेंड करता है वेदर इट नीड्स ट्रीटमेंट और इट डजंट नीड ट्रीटमेंट. मतलब अगर फाइब्रॉइड ऐसी लोकेशन पे है जो आपका इट इज इंटरफेयरिंग विद द पैसेज ऑफ यूरिन और मतलब इतना बड़ा फाइब्रॉइड हो जाए कि वो प्रेशर डाल रहा हो तो अलग दिक्कत है. बट अगर सिर्फ मल्टीपल फाइब्रॉइड्स हैं, आपका अदरवाइज ऑल्सो मीनोपॉज होने ही वाला है, ब्लीडिंग बहुत ज्यादा नहीं हो रही है, कोई बहुत पेन नहीं हो रहा है, एब्डोमिनल पेन नहीं हो रहा है, तो वी डोंट डू एनीथिंग. But a fibroid in a pregnant female, it might obstruct the delivery of a baby. Okay. So if a fibroid is in a female, it's in a pregnant female, and it is obstructing the cervical os, जहाँ से बेबी को निकलना है, then of course we need to take care of the fibroid also. So हमें ये पता होना चाहिए कि जो ब्लीडिंग हो रही है वो फाइब्रॉइड की वजह से हो रही है. सो अगर फाइब्रॉइड की वजह से ब्लीडिंग हो रही है, पेशेंट इज रिपीटेडली लूजिंग ब्लड एंड दे आर गेटिंग एनीमिक एंड इट इज डिस्टर्बिंग देयर क्वालिटी ऑफ लाइफ, और एज भी 45 के आसपास है, जब हमें लगता है कि भाई मेनोपॉज होने ही वाला है, देन वी एडवाइज फॉर अ हिस्टेरेक्टोमी कि भाई आप यूट्रस रिमूव करेंगे. बट अगर 35 की एज है, 30 की एज है और हार्मोन से पीक हो सकता है, देन वी गिव दैट. बट अगर यूट्रस की लाइनिंग थिक होने की वजह से, जिसको हम एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेसिया बोलते हैं, जो पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन में होता है, सो अगर उसकी वजह से यूट्रस की लाइनिंग थिक है और उसकी वजह से ब्लीडिंग हो रही है, तो ओनली यूट्रस रिमूवल इज नॉट गोइंग टू सर्व द पर्पज. तो उस केस में हमको बायोप्सी करके देखना पड़ता है कि ये कार्सिनोमा तो नहीं है, ये कैंसर तो नहीं है, एंड देन वी हैव टू डू अ मोर डिटेल्ड सर्जरी जिसमें यूट्रस भी रिमूव होता है, ओवरीज भी रिमूव होती हैं, उसमें आसपास के लिम्फ नोड्स को भी रिमूव करना पड़ता है, तो वो थोड़ी पेट की भी सफाई करनी पड़ती है, लिवर के आसपास की भी सफाई करनी पड़ती है. तो दैट्स अ मेजर सर्जरी. सो फॉर फाइब्रॉइड only removal of uterus is good enough, but for an uterine carcinoma leading to bleeding, only uterus removal is not a solution. Yeah. Okay. Follow up question है, what about DNC procedure in case of fibroids?
ओके, सो फाइब्रॉइड का डीएनसी प्रोसीजर नहीं है ट्रीटमेंट. ओके, डीएनसी मीन्स डायलिटेशन एंड क्यूरेटाज, दिस इज व्हाट इट मीन्स. सो उसमें हम एक तरह से सिर्फ बायोप्सी लेते हैं. ओके, दिस इज नॉट अ ट्रीटमेंट, दिस इज अ डायग्नोस्टिक टेस्ट. दोनों चीजों में फर्क होता है. एक चीज होती है कि आप टेस्ट कर रहे हो बीमारी को पकड़ने के लिए, और एक है कि आप उसका बीमारी का ट्रीटमेंट कर रहे हो. सो डीएनसी इज अ टेस्ट, इट्स एन इन्वेस्टिगेशन जिसमें यूट्रस, अगर यूट्रस की लाइनिंग अगर थिक है, एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया हो रहा है, तो हम उसको थोड़ा खुरच के उसको टेस्टिंग के लिए भेजते हैं, माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं और उसमें देखते हैं कि कैंसर तो नहीं है. तो इसीलिए पहले हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते थे जिनको यूट्रस से ब्लीडिंग होती थी और गायनेकोलॉजिस्ट उनकी सिंपल सर्जरी कर देती थी, यूट्रस रिमूवल कर देती थी, और उसको जब बायोप्सी के लिए भेजा जाता था तो उसमें आता था कि कैंसर है. एंड देन पेशेंट वुड हैव टू अंडरगो अ कंप्लीशन सर्जरी. So unnecessarily patient की दो surgeries हो गई, you spend a lot of time in hospital, it's a mental harassment, you spend a lot of money. तो इसलिए आजकल सीधा सर्जरी नहीं की जाती है, पहले बायोप्सी लेके देखा जाता है कि आर वी डीलिंग विद अ कैंसर और अ नॉन कैंसरस कंडीशन. सो डीएनसी हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग दैट. सो Right. इफ इट्स अ फाइब्रॉइड, देन फाइब्रॉइड एक्चुअली अल्ट्रासाउंड में पता चल जाता है, उसके लिए डीएनसी की जरूरत नहीं होती है. या एमआरआई इज अ वेरी गुड मोडालिटी विच कैन डिफरेंशिएट बिटवीन फाइब्रॉइड एंड यूटेराइन ग्रोथ. तो अल्ट्रासाउंड से हमको पता चल जाता है, उसको देखकर फिर हम टेस्ट कर सकते हैं. Ji. So, Monica and Umang ji, I think your questions are answered. तो वापस आते हैं ब्लैडर कैंसर के बारे में बात कर रहे थे. सो जैसा कि आपने कई बार हमें बताया है दैट कैंसर डजंट सी एज, राइट? इट इज आल्सो द म्यूटेशन ऑफ आवर सेल्स इन द बॉडी, या and it takes a while to actually grow in the body. Bladder cancer, is it more in people who are on the other side of the age, or one sees it more often in younger generation, especially with the kind of adulteration that we go through these days? So bladder cancer is more of a disease of adult age. It's not a young cancer. Kidney cancer we see in young age also, but bladder cancer usual age is after 50. I mean, normally जितने भी मैंने पेशेंट्स ट्रीट किए हैं वो अबव 50, मतलब ज्यादातर 70 60 उसके एज ग्रुप का ट्यूमर है, जबकि रीनल सेल कैंसर और किडनी कैंसर आई हैव सीन इवन इन 30 35 years of age. So bladder cancer is more of an adult, older people cancer. Older people. And since it is, as you said, ki it is more prevalent in older people, so is the rate of metastasization in this higher as compared to other kinds of cancer, or it can be curbed? So as I said कि मेटास्टेसिस डेफिनेटली इसमें भी होता है, बट थैंकफुली एज आई सेड कि ब्लैडर कैंसर के सिम्टम्स की वजह से थोड़ा डायग्नोज जल्दी हो जाता है. तो हमारे पास पेशेंट्स स्टेज 0 में भी आते हैं. स्टेज 0 इज बिफोर स्टेज 1. और उन पेशेंट्स के सर्वाइवल 15 15 साल 20 20 साल भी होते हैं. सो इट इज नॉट अ वेरी रैपिडली प्रोलिफरेटिंग ट्यूमर, मतलब कुछ ट्यूमर्स होते हैं जो बहुत गंदे गंदे तरीके से, जैसे गॉल ब्लैडर कैंसर है, पित्त की थैली का कैंसर, इट्स अ बैड ट्यूमर, इट स्प्रेड्स फास्ट. ब्लैडर कैंसर इतना तेजी से नहीं फैलता है. सो इसमें मेटास्टेसिस होती है. आई विल नॉट से कि इसमें मेटास्टेसिस नहीं होती, तो आप सिम्टम्स इग्नोर ही करे जा रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो. तो हमारे पास पेशेंट्स आते हैं जिनका ट्यूमर आसपास में लिम्फ नोड्स में फैला होता है, या लंग्स में गया होता है, या बोन्स में गया होता है, लिवर में भी गया होता है. तो वी डू कम अक्रॉस सच पेशेंट्स. तो जिन पेशेंट्स का जल्दी डायग्नोज हो जाता है, दे आर बीइंग आस्क्ड टू बी ऑन अ रेगुलर सर्विलेंस प्रोग्राम. मीन्स उनका हमको सिस्टोस्कोपी करना पड़ता है. तो सिस्टोस्कोपी का मतलब क्या है? स्कोप मतलब टू सी. सो सिस्टोस्कोपी का मतलब है कि एक दूरबीन को पेशाब की थैली के रास्ते यूरेथ्रा के थ्रू डाल के पेशाब की थैली के अंदर डाला जाता है, टू सी वेयर द ट्यूमर इज सिचुएटेड. कितना बड़ा ट्यूमर है, क्या उसका साइज है, ससाइल है, पेडेंकुलेटेड है, मतलब वो ब्रॉड बेस्ड उसका ट्यूमर ग्रोथ है कि वो ऐसे डंडी के ऊपर है, मतलब वी सी सो मेनी थिंग. एंड सिस्टोस्कोपी के बाद उसी टाइम पे तो एक तो डायग्नोस्टिक हो गया,
और उसी टाइम पे हम लोग बायोप्सी भी कर सकते हैं टू सी द वैरायटी ऑफ ब्लैडर कैंसर। तीसरा सिस्टोस्कोपी का फायदा ये होता है कि अगर कोई क्लॉट है, ब्लड क्लॉट फंसा हुआ है, उसको रिमूव किया जा सकता है। चौथा ये किया जा सकता है कि जो ब्लैडर की ग्रोथ है जो रास्ते को ऑब्स्ट्रक्ट कर रही है, उसको खुरच के उस रास्ते को ओपन किया जाता है, जिसको TURBT बोलते हैं, ट्रांस यूरिथ्रल रिसेक्शन ऑफ ब्लैडर टिश्यू। मतलब यूरिथ्रा के थ्रू जाके जो ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा हो उस एरिया को हटा दो खुरच के, एंड सेंड इट अंडर अ बायोप्सी। तो अगर कोई पेशेंट यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन के साथ आते हैं तो उनमें सिस्टोस्कोपी प्लस TURBT करके उस ग्रोथ को रिमूव किया जाता है। तो सिस्टोस्कोपी तो जो पेशेंट्स हमारे पास स्टेज 0 में आते हैं उनका हम बीच बीच में चेक सिस्टोस्कोपी करके देखते रहते हैं कि कोई और ग्रोथ तो नहीं बन रही है, कोई नया ट्यूमर तो नहीं आ रहा है। So these patients, as I said, this surveillance program, they are kept on a regular follow-up to detect occurrence of bladder cancer early. So जो इसके टेस्ट हुए एक तरह से हमें डिसीज को डायग्नोज करने के लिए, मैंने बात की यूरिन टेस्ट की बात की, यूरिन साइटोलॉजी फॉर मेलिग्नेंट सेल्स की बात की, मैंने अल्ट्रासाउंड की बात की, मैंने आपसे CT स्कैन की बात की कि हम CT स्कैन में भी देख सकते हैं। MRI किया जाता है टू सी कि ब्लैडर की कितनी वॉल इन्वॉल्व है। MRI और एक पेट स्कैन का टेस्ट होता है जो कि पूरी बॉडी में ट्यूमर कितना फैला हुआ है उसको देखने के लिए करते हैं। सिस्टोस्कोपी है, बायोप्सी है, these are different things which are done in a patient who is suspected of a bladder cancer. Question है मोनिका से again. Why is it more related to age? This specific cancer, age से related So, क्यों है? so Monica, I'm happy that you are asking so many questions. It's very inquisitive. So, देखिए क्या होता है कि जो जो भी ट्यूमर्स बनते हैं वो क्यों बनते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी का एक तरह से इंस्ट्रक्शन मैनुअल होता है जिसको हम DNA बोलते हैं। ठीक है। सो हमारी बॉडी कैसे फंक्शन करेगी, हमारा नक्शा कैसा होगा, मेरी नाक कैसी होगी, मेरा आंखें कैसी होंगी, मेरा बॉडी स्ट्रक्चर कैसा होगा, एवरीथिंग इज बीइंग रेगुलेटेड बाय अ पेयर ऑफ जीन्स। और वो जो मटेरियल होता है वो DNA के ऊपर होता है। तो जैसे जैसे जीन्स में जब म्यूटेशंस होते हैं, मतलब वो अपना रूप बदलते हैं, तो जिस तरह से उनको होना चाहिए उसके बजाय अब बिहेव करते हैं, तो उसको हम म्यूटेशन बोलते हैं। तो जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है तो हमारे म्यूटेशन के चांसेस बढ़ते जाते हैं। DNA being mutated, those chances they go up. तो अगर कम म्यूटेशंस होंगी तो हमारी बॉडी फाइट कर लेगी विद दोज थिंग्स। तो एक तो ये है कि म्यूटेशन का रेट बढ़ता जाता है एज वी एज। दूसरा, एज ए सेड, इट इज रिलेटेड विद स्मोकिंग। तो कॉजेटिव एजेंट का एक्सपोजर आपको जितना ज्यादा होगा, जितना ज्यादा आपको नंबर ऑफ पैक ईयर्स आपने स्मोक किया, वो आपके कैंसर के खतरे को बढ़ाएगा। सो इसीलिए भी से कि whenever you stop smoking, your healing starts. So अगर आपने 10 साल पिया भी है तो भी अगर आप अभी भी छोड़ दोगे तो it is going to be still beneficial for you. So that is why most of the cancers, they are more कॉमन इन ओल्ड एज। इनफैक्ट अभी हम लोग ये कहते हैं कि हमारे हिंदुस्तान में क्या पूरे वर्ल्ड में लॉन्गिविटी बढ़ रही है, लोगों की जो एवरेज एज है वो बढ़ रही है। पहले लोगों की एज 60 ईयर्स होती थी, नाउ इट इज गॉन अप टू 70, 80, 85। तो जैसे जैसे हमारी एज बढ़ेगी, हमारे कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस और कैंसर, ये दोनों चीजों का इंसिडेंस बढ़ता जाएगा। सो अभी हमारे पास जेरियाट्रिक क्लिनिक चलता है, मींस जेरियाट्रिक मींस एल्डरली लोगों के लिए। सो 60, 65 एंड अबव पेशेंट्स के नंबर्स हमारे पास बढ़ते जा रहे हैं, वो आर कमिंग विद कैंसर्स। सो दैट इज व्हाई 50 ईयर्स के बाद हम लोग जो कहते हैं कि कैंसर स्क्रीनिंग मस्ट है, उसका बेसिक पर्पज यही है कि आपका बुढ़ापा शांति से निकल जाए और मेरे पास आना ना पड़े किसी को। नहीं, कहते ना, as much as we would like that your practice does well, but at the same time, we would want कि बहुत कम से कम लोग बीमार हों and they remain healthy and they don't suffer. So Monica really is in a lot of queries that is coming, and thank you, I'm Monica. You're loving her. asking I'm loving her, tell her. absolutely that we like it when we have questions. This shows Yes. your involvement and also not only in the session but about your health and your loved ones. So she's asking two questions. One, firstly, she's thanking you for the explanation.
Are, sorry, are passive smokers at equal risk? That's the first question. And second, any changes that you have noticed in numbers post COVID? ओके, वेरी इंटेलिजेंट क्वेश्चंस अगेन. सो एज आई सेड, स्मोकिंग तो इतनी गंदी चीज है कि मतलब आप मुझसे सुबह से शाम तक इसके लिए बुलवा लो, मतलब आई कैन स्पीक डेज टुगेदर. सो स्मोकिंग की सबसे गंदी बात यही है कि वो सिर्फ जो पी रहा है उसका नुकसान नहीं करती, वो आसपास वालों का सबका नुकसान करती है. तो पैसिव स्मोकर्स को भी वो इनहेलेंट्स या वो टॉक्सिन्स हैं उसका एक्सपोजर तो हो ही रहा है ना, क्योंकि वो हवा में है. सो मैं अपने जो हमारे पास मेल पेशेंट्स आते हैं जो स्मोक करते हैं उनको मैं बोलती हूँ, भाई क्यों काम करते हो, घर छोड़ के जाते हो, हाँ, बॉस की डांट खाते हो, घर छोड़ के बसों में धक्के खा के, गाड़ी में जाके, स्कूटर पे जाके, ट्रैफिक को बीट करके आप इतना कमाने जा रहे हो. और किस लिए कमा रहे हो कि अपनी वाइफ को, अपने बच्चों को हम अच्छी जिंदगी दे सकें, या अपने पेरेंट्स को हम अच्छा घर दे सकें, उनकी केयर कर पाए. और घर जाके वही बीड़ी स्मोक करके अ, उनको हम एक्सपोज कर रहे हैं. So basically, even passive smokers are also at increased risk. So smokers के मतलब वो कहते हैं ना कि अच्छी कंपनी रखोगे तो फायदा होगा, तो choose your friends well. So it is better to stay away from friends who smoke or who take alcohol. मतलब आप अगर फिटनेस क्रेजी किसी बंदे के साथ रहते हो तो आप भी फिटनेस शुरू कर देते हो. यू ऑल्सो वांट टू कम इन शेप. इफ यू stay with a fashionable person, you also become a little fashionable. Similarly, if you start keeping a company with person who smokes or who takes alcohol or who is very obese, तो आप भी careless हो जाते हो. So it's like that. दूसरा आपका जो सवाल था कि have we seen any incidents of increase in bladder cancer post COVID? So I would say no, बट इनडायरेक्टली आई कैन से येस ऑल्सो, क्योंकि अभी बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे थे जिन्होंने कोविड को एक अपना बहाना बना लिया था कि हमारे सिम्टम्स थे, बट कोविड था तो हमने तो दिखाया ही नहीं. सो नाउ दोज पीपल हु इग्नोर देयर सिम्टम्स, दे आर कमिंग इन स्टेज 4 डिसीज. अदरवाइज दे कुड हैव बीन ट्रीटेड इन स्टेज 1. True. सो कोविड के बाद हमारे पास लंग कैंसर का इंसिडेंस जरूर बढ़ा. उसका एक फायदा था, आई वुड से व्हाई, बिकॉज कोविड की वजह से बहुत लोगों का हाई रेजोल्यूशन सीटी चेस्ट हुआ, सीटी स्कैन बहुत लोगों में हुआ. तो सीटी चेस्ट होने की वजह से जो छोटे छोटे से लंग कैंसर थे जो अदरवाइज डिटेक्ट नहीं होते वो पकड़े गए. सो वी गॉट अ लॉट ऑफ स्टेज 1 लंग कैंसर जो रूटीन में हमारे पास नहीं आते थे कोविड में. बट आई वुड नॉट से कि ब्लैडर कैंसर का इंसिडेंस बढ़ा है पोस्ट कोविड. हाँ, बट ये है कि कोविड में लोगों ने बहुत स्मोक किया है, दे हैव टेकन लॉट ऑफ अल्कोहल. अब उसका क्या इफेक्ट आएगा वो तो कुछ टाइम बाद पता चलेगा. बट True. या, May please continue. मिस दैट्स इट. So I'll put a follow-up question to what Monica asked because she and I were discussing about this, that all those people who've had COVID last year or even now, post that there are some of the other complications that are happening with a lot of them. May not necessarily be cancer, may not be directly related to the oncology field, but as a doctor, I'd like to ask you that how can one take care of one's immunity and the overall well-being, especially post-COVID, for people who've had it whether once or twice. I know of people who've had it 3 times also. क्योंकि कहीं ना कहीं लंग ऑफ कोर्स इज अ बॉडी पार्ट विच हैज गॉट इम्पैक्टेड. लिवर कईयों के केसेस में इम्पैक्ट हो रहा है. some people are getting diabetes या काफी सारी चीजें हो रही है because मे बी वेदर आई डोंट नो, आई कुड बी रॉन्ग इन दिस. स्टेरॉइड्स लिए गए थे ड्यूरिंग इन द मेडिकेशन, excess weight gain. So how does one work upon all these things to get back your life and have the strong immunity to fight and avoid any kind of further complications? देखिए What बेसिकली, has been that या, can it be that our immunity has been compromised due to COVID? ओके. सो देखिए, हेल्दी लाइफस्टाइल इज समथिंग व्हिच इज हेल्पफुल ऑलवेज. कोविड, पोस्ट कोविड, प्री कोविड, यंग एज, ओल्ड एज, तो हमें देखिए इम्यूनिटी बढ़ाने की ना सिंपल कुछ ही चीजें हैं जो हर डिसीज में काम करती हैं, वेदर इट इज डायबिटीज, वेदर इट इज हाइपरटेंशन, वेदर इट इज अ कार्डियक प्रॉब्लम, वेदर इट्स अ कैंसर, कोई भी चीज हो, ठीक है.
सो सबसे सिंपल सी तो चीज़ यही है कि एक तो पहली बात ये है कि अगर आपको कोविड हुआ है और कोविड के सिम्टम्स अभी भी मतलब पोस्ट कोविड सिम्टम्स आर स्टिल ट्रबलिंग यू, बेटर बी इन टच विद योर रेस्पिरेटरी फिजिशियन, क्योंकि बहुत लोगों के लंग्स काफ़ी खराब हालत में थे। और आप अपनी मर्जी से अगर आप एक्सरसाइजेस करते हो, वेट लिफ्ट करते हो, जिम में एक्स्ट्रा एक्सरसाइज करते हो, इट कुड बी काउंटर प्रोडक्टिव। सो बेटर है कि आप कुछ भी ऐसा कुछ करो तो अपने डॉक्टर की सलाह के बिना मत करिए, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि आई थिंक कोविड हैज टॉट अस द वैल्यू ऑफ आवर लाइफ्स। तो अगर हम कोविड के बाद भी अपनी हेल्थ की वैल्यू नहीं समझ रहे हैं तो अब जाग जाओ दोस्तों। सो मतलब बेसिकली उसमें यही है कि आप हेल्दी खाइए, sleep on time, get up on time, drink lots of water, have more of green leafy vegetables. Vitamin C was very good for COVID, and vitamin C is a immunity booster. So जैसे आंवला है, अमरूद है, नींबू है, नाशपाती हो गई, आपका मौसमी हो गई, so आंवला है, these are all immunity boosters. सो हैव मोर ऑफ देम। आप इसके अलावा हल्दी है, हमारी तो रसोई में इतनी सारी चीजें होती हैं। हल्दी जी। है, अजवाइन है, मेथी है, सौंफ है, इलायची है, मतलब दीज आर ऑल थिंग्स which help, which are anti cancer and immunity boosters. So exercise करिए, green leafy vegetables खाइए, keep your weight under control. बॉडी मास इंडेक्स हम लोग पहले कहते थे कि 30 के ऊपर ज्यादा होने पे हम उसको खतरनाक बोलते थे, बट अब कुछ कुछ आ रहा है कि इवन अबव 23 जो डेफिनेशन ओबेसिटी की थी वो सब चेंज हो रही है। सो कीप योर वेट अंडर कंट्रोल, डोंट स्मोक, डोंट टेक अल्कोहल, बिकॉज अगर कोविड के बाद भी आप स्मोक कर रहे हो तो यू आर ऑफ कोर्स रिस्किंग योर लंग्स इवन मोर। तो कई बहुत लोग प्राणायाम करते हैं, बहुत लोग एक्सरसाइजेस करते हैं, करिए बट अंडर द सुपरविजन, बिकॉज आधे से ज्यादा लोग बिल्कुल गलत कर रहे हैं। आप कभी पार्क में बैठ जाओ एंड यू सी मोस्ट ऑफ द पीपल हु आर एक्सरसाइजिंग, they are not exercising the right way. तो इम्यूनिटी के लिए अपना रेगुलर चेकअप टाइमली कराइए, न्यूट्रिशन अपना अच्छा रखिए, डोंट स्लीप इमीडिएटली आफ्टर ईटिंग फूड, डोंट बी अ काउच पोटैटो। वही बेसिक सिंपल सिंपल बेसिक चीजें हैं, वो फॉर डोंट इग्नोर योर सिम्टम्स। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि वी हैव सीन पीपल हु हैव हैड बैड कोविड एंड आफ्टर दैट उनके लंग्स इतने खराब हो गए एंड दे वर ऑन द जॉगिंग ट्रैक एंड दे जस्ट कोलैप्स्ड। सो Relax. कोविड के बाद लोगों को सिर्फ रेस्पिरेटरी सिम्टम्स नहीं हुए हैं, देयर हैव बीन न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स, देयर आर मेमोरी इश्यूज, देयर आर कार्डियक इश्यूज, देयर आर डायबिटीज इश्यूज, देयर आर ऑस्टियोपोरोसिस इश्यूज। तो अगर आप गंदे वाले कोविड से निकले हो तो अपना टाइमली रेगुलर चेकअप कराते रहिए सो दैट डॉक्टर कैन गाइड यू फ्रॉम टाइम टू टाइम। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। तो मोनिका के बहुत सारे सीरियस क्वेश्चंस के बाद वो कह रही हैं, on the lighter side, I stopped all exercises and let the weight take better part of me post COVID, just improving immunity. I think immunity आपकी improve हो गई है, like you can नहीं, उनको come back पूछो and कि focus on वेट, it. ask her why is I can't let her go with this statement. Why is the weight increasing? It means the diet is not under control. So please watch your diet, Monica. Absolutely. When the doctor tells you in a joking way, you better take it seriously because that हाँ, means the पूछना doctor is damn serious about it. मोनिका, मोनिका को बोलो कि जितने मिठाई के डब्बे घर में आ रहे हैं पड़ोसियों के घर बांट दो। Absolutely, absolutely. हाँ, Steroids, yes, blame it on the steroids, but I think yes, steroids do play an havoc in your life. But अगर वजन नहीं भी कम होता है तो one can always do light exercises. And in Monica योगा कर specifically, सकते हो, yes. So Monica, the you answer can to do your point, she's saying that it is because of steroids and due to asthma. So your answer is yoga, where you don't need to literally do your cardio. But anyways, we'll keep this light conversation separately some other day. But thank you, yeah. Dr. Bansal. We've spoken about what bladder cancer is all about, which part of the body it is at, and what are the symptoms, how it can be diagnosed. We will talk about the treatment in our next session so that you are able to understand about this in its entirety.
Do revisit the conversation to understand if you missed out on some part of it. Do share this conversation. Let's together take a pledge to create awareness about cancer. Why reach a stage and then regret? Let's be proactive. Let's test ourselves. Let's create the awareness, because I think that's the only way that we all can together fight this deadly disease. And let's not just talk about these things only on World Cancer Day or National Cancer Survivor Day, World Rose Day, and so on and so forth. Of course, those are reminders, but let us remind ourselves on a daily basis that we need to take care of ourselves. So thank you, Dr. Bansal. आज के लिए I think there is a lot of information that we need to absorb. एंड हम अगले सेशन में ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे एंड how one can go ahead with the entire prognosis and treatment. So thank you so much once again from the entire team of Motherhood Club, and we'll soon get back with the date and the details of our next conversation with Dr. Bansal. So thank you so much, and Thank you, everyone. And I just as hope, always, everybody is appreciative and is finding the conversation useful. So thank you once again for that. thank you so much. I just hope that if anyone is a smoker in the smoking himself, herself, or in the family, so they would understand the risk factors which are associated with smoking. तो अगर कोई एक बंदा भी छोड़ दे smoking, so I think this talk is useful for us. Absolutely. So just Very take true. care of your health. Keep on drinking lots of water, and keep a watch on what beautiful things Ekta and our team at Motherhood Club keeps on doing. मैं सब में participate नहीं कर पाती हूँ, but I'm very glad to be a part of this team. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. So, everyone, thank you for joining in today. Let's work towards spreading happiness by focusing on our health and wealth. And अब हम आपसे मुलाकात करेंगे मंडे को एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रेसिंग मैटर पे बात करने के लिए. Sometimes they say that you need to bell the cat. You need to talk about things which makes us uncomfortable, and this will definitely have a very long lasting bearing on women. We will be discussing about marital rape, a crime or fate, a panel discussion exclusively at the Motherhood Club platform, where we would have some people from the law fraternity, a mother, a father, someone from the organization where mostly men are a part of that organization, and someone who comes from a social background where who work for the upliftment and empowerment of women. Do join us at 6 p.m. on Monday, the 23rd of May. We'd love to hear your thoughts also on the comment. I'm sure nobody will publicly accept that it is not a crime, but let's for once be brutally honest to know what the Aam Janta thinks and what do women actually think about this. So thank you, everyone. Uh, Protect yourself emotionally, mentally, and physically. Don't forget to wear your mask, and do be with us on Monday, 6 p.m. Let's see how many of you has the courage to be a part of that conversation. Thank you, everyone. This is Akta Sehgal, founder and chief strategy officer, Motherhood Club. Today in conversation with Dr. Bansal. Thank you, everyone, and take care. Thank you so much. Bye bye.